राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में या डी आर्क बिल्ड एग्जीबिशन में वास्तु ग्लोबल का अनोखा प्रदर्शन, मिला बेस्ट स्टॉल का अवार्ड। प्रगति मैदान में 3 दिवसीय डी आर्क वर्ल्ड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें आर्किटेक्चर और बिल्डिंग में जुड़ी सभी वस्तुओं को वास्तु से तरीके के प्रदर्शन किया गया। इस एग्जीबिशन में वास्तु ग्लोबल को विशेष रूप से वैदिक आर्किटेक्चर को केंद्र से रखते हुए अपने अहम भूमिका निभाई। वास्तु ग्लोबल ने कहा, यहाँ आगंतुकों के लिए फ्री वास्तु विश्लेषण आयोजन किया गया है, जिस लोगों ने बेहतर सराहा। एग्जीबिशन के दौरान उनकी प्रस्तुति और स्टॉल को विशेष लोकप्रियता मिली। इस कारण से वास्तु ग्लोबल बेस्ट स्टॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट, बिल्डर्स और आम लोग मौजूद रहे, जिन्होंने वैदिक आर्किटेक्चर वास्तु को शास्त्र से जोड़े विचारों को जानकारी दी, उत्साह के साथ अपनाया। खास बात ये रही कि वास्तु ग्लोबल के डायरेक्टर और एमडी दोनों यहाँ चेयरमैन भी मौजूद हुए। नाम भर नहीं है, मैं अक्सर आपसे कहता हूं, एक भरोसा है, एक उम्मीद है कि जीवन का हर वो रंग है जो आपके जीवन के कैनवास को सतरंगी रंगों से रंगता है। तो आज यही करने के लिए हम प्रगति मैदान पहुंचे और आज So we would like to call Mr. Mahesh Gupta from Vastu Global. I think they have been doing really some exceptional work in terms of Vedic architecture, and Vastu really plays an important role these days in making the new houses or any institution. We would like to have a couple of words from Mr. Mahesh Gupta and his wife, who basically looks after the brand. So Mahesh. जी, आज हमें सम्मानित किया जा रहा है। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, इन्होंने हमें चूज किया बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट और बेस्ट स्टॉल के लिए। तो थैंक यू आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Karan, can we have the award please? So इधर मीटिंग में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। Thank you. Congratulations for a great show. Welcome to all. Welcome to all in DR Build exhibition from Vastu Global. We follow an ancient Indian science that establishes harmony between human life and its surroundings. This science can be defined as a flow to discover the path to success while navigating through various obstacles in life. It originates from Vastu Shastra and is also an ancient Indian philosophy that births from union of the art of designing and the art of building. This union is what is called Vedic architecture, which is more popularly known as science of architecture. This marvelous science is what contains all the secrets of a physical structure of a building and how it can affect the health, happiness and overall well-being of its dwellers. Now let's talk about the symbiotic relationship between the modern architecture and Vedic architecture. Modern architecture came to fruition in the 20th century. In this, buildings are constructed using newer and global techniques, materials and
design principles. Whereas Vedic architecture originated in ancient India and its history dates back thousands of years. The principles and techniques of Vedic architecture are described in the Vedas and other ancient texts. Modern architecture talks only about the beauty, durability, and utility of the building. Whereas Vedic architecture talks about the happiness of the people living in the building, positive development, durability, utility, and can become your money bank. Hence, binding the flow of people to their surroundings. In conclusion, I would like to say that we at Vastu Global work together with both our historical knowledge and modern techniques so that a happy society can be created. Thanks and all the best. तो मैम आज बहुत सारी बातें आपने की है, अभी जाएंगे नहीं आप रुकेंगे। हम और आप शुक्रवार को मिलते हैं शाम को 6 बजे। स्टेज से लेके सोशल मीडिया का सफर कैसा रहा? ये वास्तु ने कुछ बदल दिया क्या? जी, वास्तु ने तो जरूर बदला है। वास्तु के बिना तो हमारे घर में एक कण भी नहीं रखा जाता। पर हाँ, मुझे लोगों से भी बहुत प्यार मिला और लोगों ने इसको हमारे समझाने की तरीके से इस साइंस को और अच्छे से समझा और फॉलो किया है और बहुतों के जो फीडबैक हमें मिले हैं वो बहुत कीमती। वास्तु पे यकीन करने की 2 बड़ी वजह मुझे बताइए। अगर आपका वास्तु बढ़िया है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दिलाता है, आपका सक्सेस रेट बढ़ाता है और दूसरा आपको पता ही नहीं चलता कब से आप एक मकान से कई मकानों के तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यू सडनली हाँ जी जरूर घनश्याम जी और डॉक्टर महेश गुप्ता एंड डॉक्टर रश्मि गुप्ता को आप जरूर मिलने आइए, अपने पॉडकास्ट को देखिए शाम को 6 बजे एवरी फ्राइडे। थैंक यू सो मच। तो ये तो डॉक्टर रश्मि गुप्ता है जिनको 3 बरस का अनुभव था, जिन्होंने सारी बातें आपको बताई। सर आप पहले कुछ कहें, पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगा। सर बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने तरीके से बातें बताते हैं, लेकिन आपकी बात गारंटी के साथ होती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सर मैं समझता हूँ ये कॉन्फिडेंस अनुभव से आता है। पढ़ा लिख तो हर आदमी लेता है पर कॉन्फिडेंस इसी में। सर आपने 6 महीने में करोड़पति बनाने की बात की और सोशल मीडिया में आग लगी। सर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? सर आप 6 महीने दीजिए। तो अगले 2 मिनट फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ सर, मेरे व्यूअर्स से अपने दिल की बात कहिए वास्तु ग्लोबल को लेकर। तो वैदिक आर्किटेक्चर ये कर सकता है, मॉडर्न आर्किटेक्चर में ऐसी कोई विधा नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपका जीवन ऐसे चलेगा। हम आपका जो घर बनाएंगे उसमें हम आपको इस बात का एश्योरेंस देंगे कि ये घर इस तरीके का जीवन आपको प्रदान करेगा। इसमें जन्म इस समय पे होगा, इसमें जन्म ऐसा होगा, इसमें जीवन ऐसा होगा, इसमें डेथ ऐसी होगी। तो सारी चीजों को हम अपने हाथ में, कहा जाता है रावण के बारे में कि रावण ने सभी जितने ग्रह पिंड हैं हमारे संसार में सभी को अपने काबू में कर लिया था। तो सर सिर्फ रावण महारथ था इस वास्तु का, वो बहुत बड़ा महारथी था और वो पीछे से उसके यहाँ वास्तु विज्ञान चला आ रहा था। इसलिए उसने ये ही एक कला ऐसी है, वास्तु कला ही ऐसी है जो आपके ग्रहों को सुनियोजित कर सकती है। आप जैसे चाहेंगे ग्रह वैसे काम करेंगे दोस्तों, ये एक ऐसी कला है। दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ संपन्न करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।